Hello everyone, welcome to your channel Engineering Mathematics Tutorial, and today we will study some question on the basis of equality of matrices. So our topic is what? Equality of matrices. And today we are going to solve some problem or solve some sums on the basis of equality of matrices. So I have written here, if 2 into this matrix plus this matrix is equals to 7, 0, 10, 5 another matrix, then what will be the value of x minus y? Is it? If 2 into this matrix plus this matrix is equals to this, then what will be the value of x minus y? Clear? So let's try to find what will be the value of x minus y. So we have what? We have 2 into 3, 4, 5x plus 1y0 1 is equals to 7, 0, 10, 5. So this implies that 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2x. Plus 1y01 is equals to 7, 0, 10, 5. Now this implies that 6 plus, always add the corresponding element. ठीक है, always add the corresponding element. Means what? And at first when we are going to add two matrices, then at first we have to very careful about the both matrices are of same order. Is it? जब भी हम सम करने जा रहे हो तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए. द ऑर्डर शुड बी सेम ऑफ द टू मैट्रिसेस. सो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है. इट मीन्स व्हाट? हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. अब ऐड कैसे करते हैं? तो ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. मतलब ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो ये भी हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है. सो वी शुड ऐड 6 plus 1. इट मीन्स व्हाट? 7. 8 plus y, दिस बिकम 8 plus y. 10 plus 0 means 10 and 2x plus 1 and 2x plus 1. So this is equals to 7, 0, 10, 5. Now this is a matrix of order 2 into 2 and this is also a matrix of order 2 into 2 and both matrices are equal. It means what? The corresponding element of the matrices should be same. Is it? So same. 7 equals to 7. 7 equals to 7. It is already same. 10 equals to 10. It is already same. So we have to equate 8 plus y is equals to 0 and then 2x plus 1 is equals to 5. So this implies that y is equals to what? Minus 8 and 2x is equals to plus 1. Plus 1 goes to another side. Then it's 5 minus 1. Then 5 minus 1 means what? 4. Again y is equals to minus 8 and x equals to 4/2 means 2. So we get x equals to 2 and y is equals to minus 8. This is your required answer. Clear? Okay. So this is a question which is based on equality of matrices. Now let's move on another topic. The name of the topic is algebra of matrices. Okay, so let's move on another topic. This is algebra of matrices. Is it? Algebra of matrices. Algebra means what? Plus minus into divide, addition, subtraction, multiplication, division. Okay, so this is your algebra. So we have to learn about addition of matrices, difference of matrices, scalar multiplication and matrix multiplication. After then we will learn about division, and in matrices division is known as inverse of a matrices. Clear?
सबसे पहले हम सीखेंगे मैट्रिसेस का एडिशन, मैट्रिसेस का डिफरेंस, मैट्रिसेस का दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों के बारे में सीखेंगे। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर एडिशन है, डिफरेंस है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे आपने डिवीजन का नाम नहीं लिया। तो मैट्रिक्स में जब डिवीजन करते हैं ना, तो इसको हम डिवीजन के नाम से नहीं जानते हैं, इसको हम इनवर्स के नाम से जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डील कर देती हूँ यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। सपोज मेरे को एक बी मैट्रिक्स है, इसको डिवाइड करना है ए मैट्रिक्स से। ठीक है, एक मैट्रिक्स बी है कुछ भी, इसको मुझे डिवाइड करना है एक मैट्रिक्स ए से। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड नहीं करोगे, आप इसको लिखोगे बी इंटू, ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा, इफ ए विल गो टू द न्यूमरेटर देन इट बिकम व्हाट, देन इट बिकम्स ए इनवर्स, इज इट? ये क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, बी का तो बी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है, जो भी वैल्यू आएगा, ए इनवर्स का कुछ तो वैल्यू आएगा, वो ए इनवर्स का वैल्यू आ गया, जो भी आ गया। अब आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, जो मैं आपको भी सिखाने वाली हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप फिर इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो आपका जो भी आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वट एवर द वैल्यू यू विल गेट, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ बी बाय ए। क्लियर? तो आपने बी को ए से डिवाइड करना था, तो बी का बी और 1 बाय ए का मतलब ए इनवर्स, तो बी का बी इंटू का इंटू ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना वो मैं सिखाऊंगी बाद में। ठीक है, अब आप इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो आप मल्टीप्लीकेशन सीखोगे तब तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो मैट्रिक्स में डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स के नाम से नहीं जाना जाता। मैट्रिक्स में डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपका इनवर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डील करेंगे। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है एडिशन, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, फॉर एडिंग टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए द ऑर्डर ऑफ बोथ लिखो, टू नहीं। ठीक है, टू भी सही है बट बोथ ज्यादा सही होगा। द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम, इज इट? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है कि अगर आपको दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक से आपका दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा, यू कांट ऐड 2 और 3 मैट्रिसेस। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही मैट्रिक्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। एक मैट्रिक्स बी है, बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सी एक मैट्रिक्स है 0 0 2 4 1 6 कुछ भी। ठीक है, आपको ए प्लस बी निकालना है। इज दिस पॉसिबल? ए का ऑर्डर क्या है? 2 by 3, 2 by 1 2 3। बी का ऑर्डर क्या है? 2 by 2 और सी का ऑर्डर क्या है? अगेन 2 by 3। अगर मैं आपको ए और बी को ऐड करने बोलूं तो ए का ऑर्डर आप देखो 2 by 3, बी का ऑर्डर आप देखो 2 by 2। दोनों का ऑर्डर सेम है? नहीं है। जब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ए प्लस बी। अब अगर आपको बी प्लस सी निकालना हो तो अगेन सेम कंडीशन, बी का ऑर्डर 2 by 2 और सी का ऑर्डर 2 by 3, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल।
अगर आपको a प्लस सी निकालना हो तो, ठीक है, a प्लस सी आप कैसे निकालोगे, तो a प्लस सी, ठीक है, आपको a प्लस सी निकालना है तो a का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 था, प्लस का प्लस c का वैल्यू 0 0 2 4 1 6 था। आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो हम लोग ऐड कैसे करेंगे, 1 प्लस 0 यानी कि 1, 2 प्लस 0 यानी कि 2, 3 प्लस 2 यानी कि 5, 4 प्लस 4 यानी कि 8, 5 प्लस 1 मीन्स 6, 6 प्लस 6 मीन्स 12। तो ये दोनों ऐड क्यों हुआ, इसका भी ऑर्डर 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3, दोनों का ही ऑर्डर 2/3, ठीक है, तो सेम ऑर्डर था इसलिए दोनों को हम ऐड कर पाए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम दोनों को ऐड नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू ऐड टू मैट्रिसेस, टू और मोर मैट्रिसेस इफ दे आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, अगर वे डिफरेंट ऑर्डर के हों, ठीक है। और हमारा जो ऑर्डर बनेगा ना, तो जो पहले वाले मतलब जो हमारे पेरेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही ऑर्डर हमारे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग का भी आएगा, ठीक है, क्लियर। अब आप लोगों को सीखना है सब्ट्रैक्शन। चलिए, अच्छा इसी में एक आप लोगों को मैं क्वेश्चन देती हूँ, ये होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से बनाओगे। ए का वैल्यू है सपोज 1 4 6 2 9 0, बी का वैल्यू है 1 1 1 1 1 1 एंड सी का वैल्यू है 1 0 0 1 0 0, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड a प्लस बी प्लस सी एंड ऑल्सो स्टेट इट्स ऑर्डर। आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है और साथ ही साथ आपको ऑर्डर भी बताना है, ठीक है। चलिए, आपको a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है ना, आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है और इसका ऑर्डर भी बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से बनाओगे आप इसको। चलिए, तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, सेकंड हमारा था डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का डिफरेंस। तो पता ही है डिफरेंस भी तभी पॉसिबल है, वी कैन सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस if they have same order। हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। लाइक अगर आपका a इज इक्वल टू कुछ भी सपोज 1 2 3 4 5 6 है, आपका b इज इक्वल टू कुछ भी सपोज 0 0 1 2 3 5 है। आपने करना क्या है, आपने a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, a माइनस बी का ऑर्डर वही होगा जो पेरेंट का है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका भी है, और a माइनस बी करने के बाद भी जो ऑर्डर आएगा वो वही सेम आएगा। तो a का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, b का वैल्यू क्या है 0 0 1 2 3 5, ठीक है। अच्छा एक काम करो, a का वैल्यू ये है, गिवन आपको दिया हुआ है a एंड b, तो फाइंड a माइनस बी। आपको फाइंड क्या करना है, a माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है। a आपको दिया हुआ है, b आपको दिया हुआ है। अच्छा यहाँ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, गिवन a एंड b, ठीक है। तो आपको निकालना था a माइनस बी। तो a का वैल्यू क्या था 1 2 3 4 5 6 माइनस का माइनस, और b का वैल्यू क्या था 0 0 1 2 3 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 यानी कि 1, 2 माइनस 0 यानी कि 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2, 5 माइनस 3 यानी कि 2, 6 माइनस 5 यानी कि 1, ठीक है। देखा आपने 1 माइनस 0 मीन्स 1, 2 माइनस 0 यानी कि 2, 3 माइनस 1 मीन्स 2, 4 माइनस 2 मीन्स 2, 5 माइनस 3 मीन्स 2, 6 माइनस 5 मीन्स 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर। सेम अगर आपको b माइनस ए निकालना हो तो ये आपका काम है, आप इसे बनाओगे। पहले आपने b को लिखना है, ठीक है, यानी कि 0 0 1 2 3 5 देन माइनस, तो माइनस। अब ये आपका 1 2 3 4 5 6। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो इसका भी ऑर्डर क्या था 2 into 3, जो इसका ऑर्डर वही सेम इसका ऑर्डर, और रिक्वायर्ड जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका भी सेम ऑर्डर। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपका ऑर्डर 2 into 3, यहाँ भी आपका ऑर्डर 2 into 3, और दोनों का जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 into 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है? ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करते हैं। लाइक आपका सपोज a इज इक्वल टू कुछ भी आप ले लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, आपने निकालना है 2a, तो इसी 2a को बोलेंगे हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये 2 स्केलर है और इस स्केलर को, स्केलर मतलब नॉर्मल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक नॉर्मल क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी को हम लोग a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 को we have to multiply 2 to the matrix A, that is 1 2 3 4. Now in scalar multiplication we need to multiply each and every element of the matrix by this scalar quantity. So 2 into 1 means 2, 2 into 2 means 4, 2 into 3 means 6, and 2 into 4 means 8. So we get what? 2 4 6 8. This is your required answer. अगर आपको निकालना हो तो सपोज 1/10a, देन हम क्या करते हैं, तो हम 1/10 मल्टीप्लाई करते हैं a में। a आपका जो भी था 1 2 3 4, सो दिस बिकम व्हाट? सो दिस बिकम 1/10 into 1 means 1/10, 1/10 into 2 means 2/10, 1/10 into 3 means 3/10, 1/10 into 4 means 4/10. So this is your required answer. So ये हमारा क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, हम लोग किसी भी क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।